Assalamu alaikum. Sorry for the interruption. Sorry for the delay. Actually, had some of issue with my internet connection, right? अगर आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड और अगर आवाज नहीं आ रही फिर भी बताइएगा प्लीज. All good. Let's move on to the lecture. We just started in yesterday's session with the heme porphyria. We discussed some of the basic course contents जिसमें हमने divide किया था इसको दो हिस्सों में हमने divide ऐसे किया था कि हमने हीम को अलग कर दिया था और उसके बाद हमने हीम के साथ हमने जो बेसिक मेन कंटेंट था रिमेनिंग कंटेंट जो था वो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म और बायोसिंथेसिस ऑफ हीम along with the bilirubin metabolism जो है right जिसमें degradation of the heme hepatic uptake conjugation different mechanism and the fate of the bilirubin in intestine हमने डिस्कस करने का प्लान किया था right. कोर्स कंटेंट में सीक्वेंस जो है आपका दिया हुआ है वो कुछ अरेंज नहीं है. हमने जैसा फ्लो हमने डिसाइड किया वो उसमें दो सेट्स में हमने डिवाइड किया है इस पूरे कोर्स को हीम पोरफायरिया को इस चैप्टर को. We started with the important heme proteins found in body. We'll discuss the structure and function of some of the important types of hemoproteins like the hemoglobin and the myoglobin. Next comes the oxygen binding capacity of the hemoglobin and some of the factors which regulate the oxygen binding capacity of the hemoglobin. Right. और इसका लास्ट पार्ट सेट वन या पार्ट वन या सेक्शन वन का लास्ट पार्ट होगा इसी hemoglobin के disorders, right? Hemoglobinopathies like sickle cell anemia, hemoglobin C type, hemoglobin SC type, and thalassemia. These were the course contents. Those were included in set one, right? And in set two, जो इसका second part होगा heme porphyria का, उसको हमने continue करना है with the biosynthesis, chemistry and biosynthesis of the heme, right? The disorders of heme synthesis like the porphyrias, और फिर उसके बाद the bilirubin metabolism, of course the biosynthesis of heme हमने किया है तो उसका degradation of heme भी हम उसको करेंगे जिसमें bilirubin metabolism main topic होगा and the disorders related to bilirubin. The common one is the hyperbilirubinemia, right? ठीक है. ये कुछ course content था और learning resources of course for set one जिसमें हमने oxygen binding capacity और hemoproteins और hemoglobinopathies करना है उसके लिए chapter number 3 from Lippincott. And for the set 2 जिसमें हमारे पास biosynthesis and degradation of the heme और hyperbilirubinemia है उसके लिए chapter number 21 from the Lippincott, right? We discuss, let's have a review on the hemoproteins. Hemoproteins are basically the proteins you can label as a constituent made up of course, a protein part and a non-protein part. Non-protein part, that is heme, right? Hemo, right? Heme, that is iron binding component. We discuss some of the important hemoproteins like hemoglobin, myoglobin, cytochrome C, catalase, tryptophan pyrrolase, cytochrome P450 system, right? They have their own unique functions, right? Of course, the key thing to remember here is the hemoproteins, like they are made up of a protein part and a non-protein iron-containing structure of the part that is heme, right? We discussed the structure of heme. We defined heme as a complex of protoporphyrin 9 and ferrocin, right? And ferrocin or the iron can
can bond can form 6 bonds, right? And four bonds are, they are with the porphyrin nitrogens, right? आपके पास pyrrole rings हैं, pyrrole rings के immediate आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल है। 4 immediate bonding जो है वो आपकी विद द pyrrole rings हैं, और बाकी जो 2 हैं वो प्लानर पोर्फिरिन रिंग के साथ जो प्लानर ओरिएंटेड आपको नजर आती है, राइट। ये इसकी कुछ बॉन्डिंग्स हैं। फिर हमने डिस्कस किया मायोग्लोबिन को, डिस्कस किया डिस्कस मायोग्लोबिन एज ए प्रोटीन दैट एक्ट एज ए रेजर्वोयर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ठीक है जी। वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। उससे पहले that predominantly present in skeletal muscles and heart, right? And of course, we know the function of myoglobin act as a reservoir, right? Reservoir for oxygen. Structure की तरफ आते हैं. It's a single polypeptide chain structure made up of 153 amino acids, right? And single polypeptide chain structure है, तो उसकी single chain को हमने divide किया हुआ है into 8 helices, right? Excuse me. Um, Sorry for the interruption. Power. Power. इस तरफ आ दूँ, इस तरफ। जी जी, मुझे चाहिए। All right. So we were discussing the myoglobin, right? मायोग्लोबिन उसका स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। इसके स्ट्रक्चर में कुछ यूनिक फीचर्स हैं। यूनिक फीचर्स में हमने डिस्कस किया इसके सिंगल पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, और उसमें 153 अमीनो एसिड्स, और 153 अमीनो एसिड्स को हमने फर्दर हमने कहा कि ये 8 स्ट्रक्चर्स में, राइट, ये अरेंज है लाइक A to H, राइट। और उसके साथ एक ही हीम अटैच है, राइट। ठीक है जी। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीम इज अटैच्ड विद द in case of myoglobin structure. Myoglobin की स्ट्रक्चर की बात करते थे, of course दूसरी important इसके साथ जो प्रोटीन है that is your hemoglobin, right? Hemoglobin is basically a prime source of ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और इसमें हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे hemoglobin के, तो उसमें this globular protein a tetramerik structure contain 4 polypeptide chains, and these polypeptide chains are labeled as alpha chains and the beta chains, right? इसमें जब chains की बात की तो हमने alpha और beta chains में हमने कहा कि ये दो हैं टोटल, right? So 2 alpha हैं तो 2 beta chains हैं, तो that makes total 4 polypeptide chains, right? तो hemoglobin के लिए 4, right? 4 polypeptide chains हैं, और अल्फा चेन्स में और बीटा चेन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। अल्फा चेन्स को हमने अगर डिस्कस करें that contains 141 amino acids, and the beta chains are basically um, the key thing in beta chain are the amino acid, number of amino acids, उसमें 146 amino acids हैं। और हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके फंक्शन के ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज द मेन फंक्शन ऑफ
this particular amino acid, this particular hemoprotein, right? उसमें हमने different level of organization हमने देखे. Level of organization में उसमें primary structure, secondary, tertiary, and quaternary structure. Post quaternary structure is well defined and the final utmost structural organization of structural level of hemoglobin, जिसमें आपको 4 polypeptide chains contain 2 alpha and 2 beta chains along with 4 molecules of hemoglobin, right? Sorry, 4 molecules of heme are linked with the polypeptide chains. तो उस molecule को complete structure को हम hemoglobin का नाम दिया था, right? अब hemoglobin का जो main काम है, that is the transport of oxygen and transport of oxygen from which structure, right? Which organ, right? Transport of oxygen from lungs to the tissues, peripheral tissues, and the transport of carbon dioxide from tissues to lungs, right? This is the key function of hemoglobin. ये ऑक्सीजन बाइंडिंग कैसे हो रही है, ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन कैसे होती है, we discuss a mechanism जिसमें आपके पास हमने डिस्कस किया आपकी एक लिपिड का स्ट्रक्चर. मैं अगर let me show you. Right, this is a structure of a hemoglobin. इसमें ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन आपको नजर आ रही है, राइट? जब ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कुछ इस तरह से है कि अल्फा एंड बीटा अमीनो एसिड चेन जो हैं वो अल्फा एंड बीटा बाइंड करते हैं, कंबाइन करते हैं विद द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, राइट? जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है जी. एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, राइट? मैं मार्क कर रहा हूँ इसके साथ साथ. एंड ऐसा नहीं हो रहा कि बीटा बीटा चेन जो है वो कंबाइन कर रही हैं, राइट? अल्फा और बीटा चेन जो है, अल्फा और बीटा चेन जो है वो लिंक करके एक अल्फा और एक बीटा लिंक करके क्या बना रही हैं, द डाइमर, राइट? सो वी कैन लेबल इट एज ए अल्फा बीटा डाइमर, alpha beta dimer 1 and alpha beta dimer 2. इसी को आगे हम कंटिन्यू करें तो अब यू कैन सी यहाँ पे वीक लिंकेजेस जो हैं आपको नजर आ रही हैं. दिस आर बिटवीन द टू डाइमर्स, राइट? व्हेन when a molecule of hemoglobin is deoxygenated form, right? This particular configuration, this particular arrangement of molecule, this may the strong interactions between the alpha and beta chains, जिसमें वो stable कर रही हैं alpha beta dimers को, and weak ionic bond, the hydrogen bondings between the dimer pairs की बात कर रहा हूँ, दो different dimer pairs हमने divide कर दी alpha 1 and 2 में, right? तो उनमें weak linkages in this particular structure, that is this configuration is taut configuration or the right tau configuration, ठीक है जी. T form जिसको हमने label किया, right? And the next thing is the जब इसके साथ bind करता है oxygen, as you can see the number of molecules that can bind with the hemoglobin structure, that number is 4, right? 4. The key function of heme molecule, right? heme molecule 4 हैं, तो यहाँ पे आपके पास molecule number of molecules जो हैं वो जो entertain कर सकता है oxygen with 4 molecules, तो right? 4 molecules of oxygen can link with the hemoglobin structure, right? तो जहाँ पे configuration कुछ इस तरह से बनती है
कि वन बाय वन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो लिंक करते हैं, एंड व्हेन द लिंकेज ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन अकर्स, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है कि सीक्वेंस में, राइट, पहले एक मॉलिक्यूल बाइंड किया, फिर उसके बाद दैट एनहांसेस द affinity of a molecule of rest of the molecules of heme और the rest of the molecules of hemoglobin, जहाँ पे बाइंड कर सकती है, जहाँ पे जो अवेलेबल साइट्स हैं ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कि वो बाइंड कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन को विद द हीमोग्लोबिन। तो वो जैसे एक अरेंज हुआ, जैसे एक बाइंड किया, फिर उसके बाद दूसरा बाइंड करना शुरू करेगा, फिर तीसरा, एंड द अफिनिटी गोज ऑन, राइट। एंड आफ्टर दैट एक बाइंड किया, फिर दो बाइंड किया, एंड फिर सो ऑन, तीसरा और चौथा बाइंड करेगा इसके साथ, ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंशियल एक्टिवेशन यू कैन से। इसमें आपके पास आपने टी फॉर्म देखी, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आपको मिलेगी, टी फॉर्म, राइट। यहाँ पे आपको जो दो चीजें आपको याद रखनी है, दो डाइमर है जिसमें 1 और 2 में हमने लेबल किया, the linkage between the two dimers is a weak hydrogen bonds हैं, right? But in between the डाइमर जिसमें अल्फा और बीटा चेन जो हैं, एक सिंगल डाइमर को बनाने के लिए दो डिफरेंट चेन अल्फा बीटा डाइमर में अल्फा बीटा चेन है, तो उसको स्टेबल करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, प्राइमरली हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शंस हैं, they are present in a dimer to stabilize the structure of, right, alpha beta dimer के structure को stable करने के लिए strong interaction है, and this particular structure without oxygen is T form, right। और इसके जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड की सिक्वेंशियल एडिशन हो रहा है यहाँ पे, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है हीमोग्लोबिन के केस में, ये स्टेप बाय स्टेप एक बाइंड किया, फिर दो बाइंड किया, फिर तीसरा, इसी तरह से बाइंड करता जाएगा, राइट। the number of oxygen bind करते जाएंगे, and this particular binding of oxygen with the hemoglobin is cooperative binding, and this is a reason behind कि hemoglobin का जो कर्व आपको मिलता है वो सिग्मोइडल कर्व मिलता है, राइट। आपको हाइपरबोला स्ट्रक्चर नहीं, कर्व नहीं आपको मिलता है। हेमोग्लोबिन जो है जैसे ही उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, सिग्मोइडल कर्व की मिलता है, वो आगे हम देखते हैं। द रीजन बिहाइंड सिग्मोइडल कर्व इज द कोऑपरेटिव बाइंडिंग। एक बाइंड किया, फिर उसने कोऑपरेट किया कि दूसरे को अकोमोडेट करेगा, फिर तीसरे के लिए एफिनिटी बढ़ेगी, फिर चौथे के लिए एफिनिटी बढ़ेगी, एंड द सीक्वेंस ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आगे चलती जाएगी until the binding of four total four oxygen molecules, right? ठीक है जी। And the next thing to for you guys with that, वो क्या था, द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन में जो हमने की चीज हम देख रहे थे, myoglobin can bind only one molecule of oxygen. Why? We had this question in last lecture जहाँ पे हमने इसको फाइंड अप किया था। तो यहाँ पे आप अगर हमें बताते हैं what is the reason behind a binding of one molecule of oxygen with the myoglobin? क्या रीजन है? अगर आप लोग यहाँ पे शेयर करें quick answers, you guys can raise your hand. All right, one molecule, one single polypeptide chain, right? Absolutely right. And a single polypeptide chain is linked with one heme molecule, right? Right? ऐसा ही है।
जहाँ पे हमने बात की थी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एक को ही एंटरटेन कर सकता है, ठीक है। हमने बात की थी प्लानर स्ट्रक्चर की। प्लानर स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन with heme or the iron, right, ठीक है। ओके, दिस इज अ रीजन कि एक मॉलिक्यूल एक को ही एंटरटेन करेगा। एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ what about the answer of this question? Hemoglobin can bind 4 molecules of oxygen. Why? Need quick answers, quick answers, quick answers. Because of 4 chains, but absolutely right. Um, this is the reason behind the number of molecules जो हैं वो 4 हैं in case of hemoglobin, and the number of molecules that can bind with the myoglobin is 1, only 1. Excuse me. All right. Oxygen dissociation curve. इसको राइट टू दी म्यूटेड या इसको रिकॉर्डिंग इसको लेकिन इसको म्यूट किया। ऑलराइट जी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे थे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है क्या? जिसमें जो चीज़ें हमें इसमें चाहिए वो क्या क्या हो? ऑलराइट जी, ऑलराइट, 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 ऑलराइट। अब ठीक है जी, आवाज अब आ रही है आप लोगों को? ऑलराइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। यहाँ पे कुछ इंटरनेट एक्सेस का इशू कोर्स यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वापस आते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की हम बात कर रहे थे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हमने बात की थी कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ मायोग्लोबिन जो बाइंड कर सकते हैं वो एक है, राइट। तो एक साइट अवेलेबल है, तो अगर हम कहते हैं कि एक साइट है तो अगर वो ऑक्यूपाइड है तो इसका मतलब है कि
वो ऑक्यूपाइड है, सैचुरेटेड है, राइट? तो 100% उसकी सैचुरेशन है, राइट? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, if only one site is available for the binding of oxygen, in case of myoglobin, तो वो एक है तो फोर्स, तो वहां पे आप क्या करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कहेंगे, दैट इज ओनली आइदर जीरो होगा या 100% होगा, ठीक है? बट इन केस ऑफ हेमोग्लोबिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन वेरीज, राइट? कैन वेरी फ्रॉम 0 to 100। अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करें तो वो 4 हैं, 4 मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो हम कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल, उसमें टोटल परसेंटेज अगर डिसाइड कर लें, जो इक्वली शेयर करते हैं विद टोटल 100%, तो वो 25% ईच आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर एक अटैच हैं विद हेमोग्लोबिन तो 25% ऑफ कोर्स, दो हैं तो 50%, तीन हैं तो 75%, एंड व्हाट अबाउट दैट केस जहां पे आपके पास जहां पे आपके पास ऑप्शन आ रही है 4 मॉलिक्यूल्स की, कि 4 मॉलिक्यूल लिंक कर सकते हैं, तो वहां पे आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%, ठीक है जी? जहां पे अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, व्हाट अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट? Next is the partial pressure of oxygen. अब partial pressure of oxygen क्या शो करता है, जिसको हम PO2 से हम डोनेट कर रहे हैं, ये एक्चुअली शो करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में डिजॉल्व है, द गैस ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड, उसका हम लेबल करते हैं PO2, राइट? और अगर हम इसको ग्राफ में कुछ इस तरह से देखेंगे, कर्व हमें कुछ इस तरह से मिलता है, राइट? ये कर्व में अगर हम देखते हैं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके वाई एक्सिस पे है, राइट? यहाँ पे स्टार्ट और 0 to 100 वेरी कर सकता है। इन केस ऑफ मायोग्लोबिन क्या होगा, नहीं कोई भी अटैच इसके साथ ऑक्सीजन तो 0 है, एक ही साइट अवेलेबल है तो एक ही ऑक्सीजन अटैच हो रहा है तो 100%, राइट? सो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन में, अगर आप देखें मायोग्लोबिन को अगर देखते हैं तो अगर तो बाइंड है, अगर तो बाइंड किया हुआ है ऑक्सीजन तो 100%, अगर नहीं है तो 0%, राइट? 0 ऑफ कोर्स। व्हाट अबाउट द हेमोग्लोबिन? और अगर आप यहाँ पे देखें हेमोग्लोबिन के लिए कितने हैं चांसेस, 25%, 50%, 75% एंड 100%। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने लिंक हैं उसके साथ। वेल अगर लिंक हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके एक 25%, दो है 50%, तीन है 75% एंड 100%। इतनी रेंज आपको मिलती है। व्हाट अबाउट द डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है इन केस ऑफ हेमोग्लोबिन, एज यू कैन सी इन पर्पल, राइट? यहाँ पे देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपको एक्स एक्सिस पे नजर आ रहा है, दैट कैन वेरी फ्रॉम 20 to 0 to 120। यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, इस ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, इस ग्राफ में अगर प्लॉट करना है तो यहाँ पे आपको हेमोग्लोबिन के केस में मैं अगर इसको देखता हूँ तो दैट पर्टिकुलर कर्व इज सिग्मोइडल कर्व, दैट पर्टिकुलर कर्व इज सिग्मोइडल कर्व, राइट? और मायोग्लोबिन के केस में आपको मिलता है हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर, हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, राइट? और ये कौन सा कर्व है, सिग्मोइडल। हम आगे देखते हैं कि ये क्यों है सिग्मोइडल कर्व। ऑफ कोर्स इसमें अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें इस तरह से हमें नजर आता है मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को, तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे, वो कुछ हम उसको ऑलराइट जी। इस पर्टिकुलर कर्व में इस
All right. मैं ये दूसरे मैं फोन से ये बोला तो ये सेम है बट इस पे नहीं थ्रू हो रहा। मैं ये करना चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग का क्या है? ऑलराइट, वापस आते हैं। यहाँ पे आपको ये प्लॉट नजर आ रहा है आपको, सेम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको y एक्सिस पे नजर आ रही है एंड पार्शियल प्रेशर PO2 इज ऑन योर x एक्सिस, राइट। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद द, यहाँ पे अगर देखें तो दो चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, पेरिफेरल टिश्यूज और लंग्स, राइट। पेरिफेरल टिश्यूज और लंग्स, पेरिफेरल टिश्यूज और लंग्स में अगर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो चीजें, हमने दो तरह की एक्टिविटी, एक्सरसाइजिंग मसल और मसल एट रेस्ट जो है, ये भी दो एक्टिविटीज, दो पैरामीटर्स को हमने ध्यान में रखना। और यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 50% है तो वहाँ पे इसको प्लॉट करने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव बेटर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन के स्टेप बाय स्टेप उसको देखना है। व्हाट अबाउट द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में क्या हो रहा है, आपका रूटीन कर्व जो है वो आपको अगर देख सकते हैं तो ये कुछ मिलता है, सिग्मोइडल कर्व। सिग्मोइडल कर्व में अगर देखें, जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंडिंग इंक्रीज होती जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिंक करते जाते हैं विद हेमोग्लोबिन, तो आप देखें ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ऑफ कोर्स वो इंक्रीज करती जाती है, एंड along with that partial pressure of oxygen in different tissues, तो peripheral tissues में आपको जो प्रेशर चाहिए in order to have more oxygen saturation, वो partial pressure आपको कम चाहिए, right? What about the partial pressure of uh, a muscle or the muscle of a lung or the tissues, lung की बात करें तो वहाँ पे आपको देखेंगे हम अराउंड 100, राइट, यहाँ पे आपको ये मिल रहा है अराउंड 100, तो पार्शियल प्रेशर वो आपको ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कर्व देखते हैं, कर्व को अगर प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर वर्सेस द ऑक्सीजन सैचुरेशन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे आपके लिंक करते जाते हैं, आपका एक कर्व जो है वो सिग्मोइडल कर्व की तरह प्लॉट होता है, और अल्टीमेटली यहाँ पे आपको एक पीक मिलती है, ठीक है, जहाँ पे all the active sites or the sites available in case of hemoglobin, जो बाइंडिंग है वो 4 है, तो मैक्सिमम अगर ऑक्यूपाइड है तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह अल्टीमेटली ये कंटिन्यू रहेगा। व्हाट अबाउट द मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में हम कहते हैं कि एक साइट अवेलेबल है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिंक कर सकता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आइदर इज 0 और द 1, अगर 0 है तो द साइट इज नॉट ऑक्यूपाइड, फ्री है। और यहाँ पे जब हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कुछ हाइपरबोलिक कर्व आपको मिलता है। हाइपरबोलिक कर्व में हम देखें तो स्पीड जैसे लिंक किया, partial pressure of oxygen, the oxygen saturation in case of myoglobin or the tissues or the tissue that is directly linked with the availability of oxygen in case of exercising muscle, तो वहां पे अगर देखते हैं तो partial pressure is less as compared to the lungs। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन सैचुरेशन एक साइट अवेलेबल है, तो स्पीडली कर्व मूव किया, ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज की, राइट, और अल्टीमेटली ये आपको हाइपरबोलिक कर्व की शेप में आपको मिलता है कि फौरन से ऑफकोर्स एक साइड अवेलेबल है, तो जैसे ही लिंक किया तो वो स्पीडली ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज करेगी, राइट। तो this particular response of the hyperbolic curve in case of myoglobin, as we know the function of myoglobin, this act as a
reservoir or respond to muscles oxygen needs. जब मायोग्लोबिन को हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इसका hyperbolic curve हमें मिलता है, and this particular curve is due to the higher oxygen binding of myoglobin with the oxygen, right? यहाँ पे अगर हम इसको और कंटिन्यू करें, hemoglobin is having cooperative binding. Cooperative binding एक लिंक किया है, फिर दूसरे को एक्टिवेट, दूसरे के लिए एफिनिटी इंक्रीज कर जाएगी, फिर तीसरे के लिए, तो तीनों ऑक्यूपाइड हैं, फिर चौथे के लिए इंक्रीज कर जाएगी एफिनिटी, राइट, एंड सो ऑन. अगर हम इसी को देखें तो इसमें सिग्मोइडल कर्व ग्रेजुअली जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, उसी तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको देखते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से इंक्रीज करता चलता है. ठीक है, जो इसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे देखें, अगर हीम हीम इंटरेक्शन की बात करें, हीम हीम इंटरेक्शन इज द सेम, राइट, जहाँ पे हमने लास्ट डायग्राम में हमने देखा था. हीम हीम में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक हेमोग्लोबिन बाइंड की, सॉरी हेमोग्लोबिन इज अवेलेबल, उसके पास 4 अवेलेबल साइट्स हैं, तो 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकती हैं. तो पहला बाइंड किया तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन मिल गया. ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल. फिर उसके बाद सेकंड ऑक्सीजन ऐड हुआ. ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास 2 हेमोग्लोबिन नजर आ रहे हैं. ठीक है जी, फिर इन 2 के साथ दोबारा एक और ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स एफिनिटी इंक्रीज होती जा रही है फॉर द ऑक्सीजन. जैसे जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से, तो यहाँ पे देखें 3 अटैच हो गए. ठीक है, एंड तो एक और आपके पास ऑक्सीजन आया, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आर 4 टोटल 4 इन नंबर. तो जैसे जैसे हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन आती जाती है कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से, तो ऐसे ऐसे साथ साथ जो है वो एफिनिटी इंक्रीज होती जाती है फॉर द ऑक्सीजन इन केस ऑफ हीम, राइट. तो ठीक है, so next thing is that this particular phenomena is, you can label it as a heme interaction, और हम इसको under the heading of heme interaction हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है जी, यहाँ पे वो अगेन heme interaction में 2 चीजें आपको याद रखनी है, T फॉर्म और R फॉर्म, राइट. रिलैक्स फॉर्म है और टॉप फॉर्म है, T फॉर्म और R फॉर्म. तो T फॉर्म हमने कहा था कि डीऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म है, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन कि उसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है. दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम पहले कर चुके हैं, ये T फॉर्म है. और सेकंड थिंग इज द रिलैक्स फॉर्म और द R फॉर्म. यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हीम हीम इंटरेक्शन की वजह से, वहां वहां आपके affinity of course towards the oxygen increase होती जा रही है. और this particular structure is relaxed structure, ठीक है, और R structure और the oxyhemoglobin structure जिसमें ऑक्सीजन लिंक की हुई है. ठीक है जी, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्लॉट अ कर्व जो इस पे इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, 2 चीजें जो हमें याद रखनी है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में है ऑक्सीजन सैचुरेशन. ऑक्सीजन सैचुरेशन को हमने किससे डोनेट किया था, वाई से, राइट, परसेंटेज में कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है. द सेकंड थिंग इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट. ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ दूसरी चीज है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हमने mmHg में हमने इसको कैलकुलेट करते हैं, ऑफ कोर्स पार्शियल प्रेशर को. ठीक है, ये 2 चीजें हमें चाहिए प्लॉट करने के लिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. और जैसे जैसे ऑफ कोर्स हमें ये भी पता नहीं नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल कितनी है दोनों के केस में, हेमोग्लोबिन के केस में और मायोग्लोबिन के केस में, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज क्या हो सकती है हेमोग्लोबिन के केस में और
मायोग्लोबिन के केस में। ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग इज द एलोस्टेरिक इफेक्टर्स की तरफ आते हैं कि इस प्लॉट को हमने कहा कि जी एलोस्टेरिक इफेक्टर्स जो हैं वो इस पे इफेक्ट हो सकते हैं। ये इफेक्टर्स जो हैं in case of interaction of allosteric effectors on one side of hemoglobin can affect the binding of oxygen at other sides of the molecule, right? एक पे अगर लिंक किया हुआ था, ऑफ कोर्स आपने कहा कि हीम इंटरेक्शंस में हमने देखा था कि एक मॉलिक्यूल अगर लिंक किया हुआ है, एक साइड फोर्स ऑक्यूपाइड है, तो वो अगली साइड को, नेक्स्ट साइड को एक्टिवेट और अफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन वो इंक्रीज कर देती है। तो जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ अगर लिंकेज कर जाता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिंक करता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो अफिनिटी बढ़ जाती है सेकंड मॉलिक्यूल की, सॉरी सेकंड साइड की जो कि हेमोग्लोबिन पे है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई इफेक्टर आ जाए, कोई एलोस्टेरिक इफेक्टर, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स कौन से हैं जो बाइंड कर सकते हैं अदर देन द एक्टिव साइड, ठीक है, जो लिंक कर सकते हैं, जो अपना इफेक्ट दे सकते हैं, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स को हमने लेबल किया करेंगे। ठीक है, एंड these allosteric structures you can number as a number one is partial pressure of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लेवल है वो इफेक्ट कर सकता है इसको। pH of the environment, of course, this is a key thing। third one is the, all right, यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में, इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनवायरनमेंट। अगर इस कर्व को हम देखें, सॉरी इस इलस्ट्रेशन में देखें, तो यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ग्रीन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच। जैसे ही पीएच ड्रॉप करती है, अगर पहले देखें पीएच ड्रॉप करती है, पीएच ड्रॉप होने का क्या मतलब है? पीएच ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज कर दे, राइट? यही डेफिनेशन है पीएच की, राइट? कि अगर पीएच जो रेंज है 0 to 14, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, तो वो एसिडिक मीडियम की तरफ चला जाता है, राइट? ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए डिक्रीज अगर पीएच करती है तो एसिडोसिस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है जी, एसिडिक मीडिया बन जाता है। ऑलराइट जी, जैसे जैसे हम बात करते हैं, अगर उसका लिंक देखें, पीएच का अगर ड्रॉप करते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेज कर जाती है, एंड दिस इज आल्सो अ प्राइम रीजन ऑफ एसिडोसिस, ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर देखें, पीएच अगर आपके पास अगर ज्यादा होती है, तो आपके पास, अगर पीएच आपके पास ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस, राइट? तो वो फेवर करता है अल्कलोसिस को, एंड ये एक फिनोमेना हो गया अल्कलोसिस की तरफ, और दूसरी तरफ क्या होगा, पीएच इंक्रीज करिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। वापस आते हैं एलोस्टेरिक इफेक्टर्स पे, नंबर 3 पे अवेलेबल होंगे 2,3 bis phosphoglycerate, ठीक है जी। 2,3 bis phosphoglycerate इज अ मॉलिक्यूल जो कि आपको कहाँ पे मिलता है, प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ, इन सेवरल कंडीशन, राइट? नॉर्मली क्या होता है, एक important mechanism, glycolysis is one of the important mechanism to produce energy, conventional pathway to produce energy, or the conventional pathway for the oxidation of glucose molecule, right? तो उस केस में आपको मिलता है, right? आपके प्रोजेक्ट को
और यहाँ पे आप देखें पानी its production increases for several conditions like पानी पाऊ के low बोतल जाग गए बारो ने उड़े हमने right hypoxemia right हो जाता है वहां पे आपको मिलता है एनीमिया के केस में आपको मिलता है वो कॉमनली आपको देख सकते हैं राइट कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में आपको मिलता है ठीक है these are some of the two three GPG अगर आपको GPG अगर दिख रहा है तो एनिमल के जरिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल पहले आपका जैसे करें दूसरी गाय राइट टाइप ऑफ DPG ठीक है अगर DPG या BPG कहीं लग रहा है तो इसका मतलब ऑलराइट टू थ्री बीपीजी के बाद है हमारे पास टेम्परेचर ठीक है जी टेम्परेचर इफेक्ट भी देखते हैं ऑलराइट प्लॉट में तो कुछ इस तरह से हमें चीजें नजर आती हैं ठीक है जी प्लॉट में आपके पास कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं प्लॉट में दोनों तरह के फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं कौन कौन से अगर उस कर्व की तरफ देखें तो यहाँ पे तो कुछ चीजें इस पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व है और द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसको इंक्रीज कर रही हैं कुछ जो है वो डिक्रीज कर रही हैं ठीक है जी अगर हम इस इलस्ट्रेशन को देखें तो यहाँ पे जो डिक्रीज कर रही होंगी डिक्रीज का मतलब क्या होगा कि डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ एट 50 राइट राइट 50 जहाँ पे हाफ ऑफ द हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% होगी तो वहां पे जो चीजें इस कर्व को डिक्रीज करेंगी या अफिनिटी इन केस ऑफ अगर ऑफ कोर्स बात करें डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर में इंक्रीज अफिनिटी की और दूसरी तरफ डिक्रीज अफिनिटी की तो दो तरह के आप चीजें ले सकते हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं क्या हैं एलोस्टेरिक फैक्टर्स इनका इफेक्ट क्या है इन सारी चीजों पे कि अगर तो पार्शियल प्रेशर 50% ऑफ द पार्शियल प्रेशर और द सैचुरेशन डिक्रीज करती है तो ये कर्व जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट ठीक है और अगर यही सारी चीजें इनमें से कौन सी चीजें अगर रेज करती हैं कौन सी डिक्रीज करती हैं जिसमें डिक्रीज अफिनिटी आपको मिलती है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑफकोर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो टोटल 4 ही हैं हमारे पास टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड 2,3 बीपीजी एंड पीएच ठीक है जी इस प्लॉट को अगर हम आगे देखें कंटिन्यू करें ये कुछ इस तरह से हमें मिलता है नो नीड टू वरी ये सारी चीजें फिंगर टच में होंगी इंशाल्लाह टेम्परेचर आपने देखा 2,3 बीपीजी partial pressure of carbon dioxide and acidity or the medium or the pH ठीक है जी यहाँ पे कर्व में आपको क्या मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि those who shift the curve towards left with that shows the higher affinity right that shows the increase affinity इसका मतलब है कि decrease partial pressure of the 50% of the oxygen saturation 50% पे देखते हैं तो decrease अगर मिलती है और increase with the increase affinity तो ये फैक्टर जो है लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में कौन कौन सी चीजें शिफ्ट कर रही हैं यहाँ पे देखें
टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है, डिक्रीज लेवल ऑफ 2,3 BPG लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है, राइट. व्हाट अबाउट द पीएच, डिक्रीज लेवल ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो इनके साथ अगर कंपेयर करें तो वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर रही थी, बट यहाँ पे आपको कर्व क्या मिलता है, राइट पे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट पे पीएच जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है. ये एक एक्सेप्शन है, वो आपने याद रखना है. राइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि लोअर अफिनिटी, लोअर अफिनिटी पे कौन कौन सी चीजें, लो अफिनिटी पे जो राइट पे शिफ्ट कर रही हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, वो इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज 2,3 BPG level, increase partial pressure and the decreased pH, ठीक है जी. दिस इज द की थिंग, ये आपको ये याद है तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, राइट. अगर हम मूव करें विद द पी टू द पीएच, पीएच में आप देखें, पीएच को अगर हम देख सकें इसमें तो इंक्रीज पीएच का मतलब क्या है कि लेफ्ट पे, और डिक्रीज पीएच का मतलब है राइट पे. इसको हम ऐसे देखते हैं. आपको दो चीजें याद रखनी है कि हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन किन दो स्टेट्स में आपको मिली थी, जो ऑक्सीजन बाइंडिंग थी, ऑक्सीजन बाइंडिंग की जो हमने यहाँ पे डाइमर की डिस्कस किया था, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था. वहां पे अगर हम देखते हैं तो टी फॉर्म जो थी वो क्या करती थी, लो अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन शो करती है, ठीक है, सैचुरेशन इज 0, एंड आर स्टेट इज हाई अफिनिटी स्टेट फॉर ऑक्सीजन, ठीक है जी, जहाँ पे रिलैक्स स्ट्रक्चर था, रिलैक्स स्टेट था. अगर हम इसको कंटिन्यू करें, पीएच एट इंक्रीज कंसंट्रेशन, इंक्रीज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आपके पास क्या मिल रहा है, आपको मीडियम जो है वो कौन सा मिलेगा, एसिडिक और बेसिक. ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं. अगर आपको मीडियम ही आपको प्रोवाइड किया जाए इस तरह का कि जिसमें आपके पास ऑप्शन ही ये है कि अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन आपको मिलती है तो वहां पे आपके पास क्या फिनोमेना है कि इंक्रीज पीएच पे आपको अल्कलोसिस मिलती है, राइट. इंक्रीज पीएच पे आपको अल्कलोसिस मिलती है, राइट. और यहाँ पे देखते हैं, राइट, लेट्स वाइंड इट अप इन कपल ऑफ मिनट्स, राइट. इंक्रीज पीएच में आपको मिलता है अल्कलोसिस. अगर आप इसमें अल्कलोसिस के केस में देखते हैं कि अमाइनो एसिड जो है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन हेमोग्लोबिन चेन, तो वहां पे आप देखते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है. एंड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, आपको जो मिल रहा है अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलते हैं. दिस पर्टिकुलर प्रोटोनेटेड स्ट्रक्चर that allows to form ionic pairs, right. तो यहाँ पे स्टेबलाइज करता है कि स्ट्रक्चर को, टी स्टेट को, टी स्टेट को कैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है कि प्रोटोनेटेड फॉर्म में जाता है तो ये आयनिक पेयर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स बना सकता है. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स अगर हैं अवेलेबल तो आप क्या करते हैं, दिस इज टी स्टेट. तो टी स्टेट को अगर स्टेबलाइज कर रहा है अगर पीएच और द इंक्रीज पीएच, तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि टी स्टेट अगर है तो दैट शोज द लोअर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. एंड अगर तो लोअर अफिनिटी आपको मिलती है, लो अफिनिटी अगर आप यहाँ पे देखें लो अफिनिटी, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज पीएच पे ये कर्व चला जाएगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है. और अ, इस डिक्रीज पीएच में अगर ये राइट पे जा रहा है तो ऑफ कोर्स द ऑपोजिट इज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट,
ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन पीएच, राइट, यही आपको नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, राइट, जिसमें आप देख रहे का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अगर आप पीएच इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट पे जा रहा है, और अगर आप पीएच डिक्रीज कर रहे हैं तो दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मूव्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम बाकी फैक्टर्स भी देखेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, बोहर इफेक्ट आएगा, ठीक है, जो इसी से लिंक किया हुआ पीएच के साथ है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इनफैक्ट जरूर इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को डिस्कस करेंगे, उसके साथ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के साथ हम टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन जीन फैमिलीज को डिस्कस करेंगे कि ये बन कैसे रही हैं, टाइप्स जो हैं, ठीक है, एंड फाइनली द ग्लोबिन चेंज जो है इसमें वो किस तरह से आती हैं। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज द की टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में बार बार आपसे पूछा जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, राइट, अल्लाह हाफिज़।